So good evening. I shared some study material with you on types of journalistic writings. Have you gone through it? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So, No, sir. no, why? Why no? It was only one page. I would prefer that if you come prepared for the class, then we can make these classes more interactive. So the material that I share with you is that various journalistic writings are defined by three elements. One is the fact, then another is analysis or interpretation, and third is your opinion or views or comment. So these are the three primary elements which define what kind of journalistic writings you are doing. Now, for example, news is factual. News should be based on the hard facts, which we have discussed, I think, repeatedly, that news is based on facts and evidences. That's important. So news has to be factual, and generally it is advisable that you use adjectives in news very, very selectively. Adjectives in straight reporting should be avoided because adjective will carry some meaning. Now, for example, if there's some political rally, am I clearly audible to you, all of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. For example, if there's a political rally, you can write simply rally. You can say huge rally, mammoth rally, historical rally. So these are the adjectives. So these adjectives should be used very, very selectively. Huge rally means you are making an assessment. You are delivering a judgment also that the rally is really huge. And on what basis you decide that this rally is huge or it's a historical rally. Which rally can be called historical, which really is historical in some sense. Now, for example, after emergency, I remember that rally. There was a rally in Ramlila Maidan, which was to be addressed by Jayaprakash Narayan and all those leaders who were jailed during emergency. How have you ever heard the name of the Jayaprakash Narayan? Yes, sir. That he launched that Sampurna Kranti movement in 70s, and it originated from Bihar, in fact. So in that rally, you see, after emergency, there was a movie, Bobby. Have you heard the name of the Bobby movies? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उस जमाने में क्या था कि जो दूरदर्शन था, दूरदर्शन में एक वीक में 2 बार जो है फीचर फिल्म दिखाई जाती थी. तो दूरदर्शन में जब फीचर फिल्म्स होती थी तो दिल्ली के सड़कों पे सन्नाटा होता था, क्योंकि लोग फिल्में देखते थे दूरदर्शन पे. और उस जमाने में टेलीविजन सेट भी सब घरों में नहीं होते थे, तो पास पड़ोस के लोग भी आकर के दरी बिछा के बच्चे बैठ के जो है दूरदर्शन में फिल्में देखते थे. तो जयप्रकाश नारायण की रैली में जो है वो उस वक्त इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया ताकि लोग जो है रैली में न जा पाए. और लोग जो है दूर दराज से कई किलोमीटर पैदल चल के रैली में पहुंचे. एक काम उन्होंने क्या किया कि बाकायदा बंबई से जो है हेलीकॉप्टर भेज के बॉबी फिल्म का प्रिंट मंगाया गया और दूरदर्शन में बॉबी फिल्म दिखाई गई, ताकि क्योंकि बॉबी फिल्म उस वक्त बहुत पॉपुलर थी, ताकि लोग उस रैली में न जा पाए. वो रैली मैंने अटेंड भी की, मतलब जो है. और जैसे उस रैली को कह सकते हैं कि दैट वाज हिस्टोरिकल रैली आफ्टर इमरजेंसी. ठीक है, तो यहाँ हिस्टोरिकल टर्म कैन बी यूज्ड हियर. इंडिपेंडेंस के बाद अगर जो है वो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कोई रैली एड्रेस किया, अगर दैट कैन बी कॉल्ड हिस्टोरिकल रैली. तो आप हिस्टोरिकल जब टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल. तो ये एडजेक्टिव्स का यूज है सेलेक्टिवली करना बहुत जरूरी है कि एडजेक्टिव कितना एप्रोप्रिएट है. नॉर्मली यही एक प्रिंसिपल है रिपोर्टिंग का कि वी शुड नॉट यूज टू मेनी एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव का मतलब होता है कि वी आर डिलीवरिंग ए जजमेंट आल्सो. ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Any question on that?
जैसे कि आप कई बार लिखते हैं कि he said is the most neutral term. He or she said is the most neutral term. Then when you say he claimed, तो आप claim करता है तो what does mean? कोई politicians की बात आप करते हैं कि he or she claimed that we are going to sweep the UP elections. So here, because you are doubting that claim, you have some doubt on that statement that a political party is saying that we are going to sweep UP elections. Then here you can say that so and so claimed. Is that clear? Yes, sir. फिर आप जैसे लिखते हैं कि he admitted, he or she admitted. Admitted का मतलब यह है कि अगर किसी पब्लिक फिगर के अगेंस्ट लगातार कोई कैंपेन चल रहा है या काफी किसी इशू पर कोई चर्चाएं हो रही हैं, उसमें तरह काम तक एलिगेशंस लगे हुए हैं, तो उसने माना कि एडमिट कर लिया. फिर यू से ही एडमिटेड. ठीक है. ही अफर्म्ड. अफर्म्ड कहते हैं ना, विश्वास जताना. He and she affirmed his or her faith on Indian Constitution. We will abide by Indian Constitution. So here affirm means you are affirming where आपको कोई विश्वास किसी में पैदा करना है. He blamed. इस तरह के टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हैं और इसको सिलेक्टिवली यूज करते हैं कि कैसे उस टर्मिनोलॉजी को यूज करना है. ठीक है? Is that clear? Yes, sir. So the first thing is that reporting is based on the factual, and in your whatever language you are using is very very important. आप क्या लैंग्वेज यूज करते हैं. अब जैसे कि आई एम नॉट डिलीवरिंग ए जजमेंट. जैसे कई बार कहा गया कि किसान रैली में 700 किसान शहीद हो गए. अब शहीद वर्ड कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है, दैट यू थिंक अबाउट इट. ठीक है ना, कि शहीद कहेंगे लोग 700 किसान शहीद हो गए, या कैसे नक्सलवादी इलाके में जो सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलवादियों के बीच में झड़प हुई तो हमें कहेंगे तो शहीद हो गए. थिंक अबाउट इट. क्या व्हाट डू यू थिंक? शहीद कहेंगे इनको? नो सर. क्या कहेंगे? डाइड. सर मैं आए. हाँ, यस यस. हाँ सर, एक्चुअली जो शहीद वर्ड है या मेट्रोडॉम वर्ड है, ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में यूज होता है. और ये वर्ड रिलीजियसली जब हम कुछ चीज कर रहे थे और तब उसके लिए मर जाते हैं अपने रिलीजन के मन, तो यूज होता है. तो मुझे लगता है कि इसके बदले वैसे तो वीरगति वर्ड यूज होना चाहिए, लेकिन जो किसान वाला केस है इसमें ये वर्ड यूज नहीं होने चाहिए, कोई भी नहीं होने चाहिए. वीर गति भी. अब एक तो यह है कि कई रिलीजन में जो रिलीजियस वॉर हुए, हाँ जी, हाँ जी, इस्लाम में जिहाद हुआ है, हाँ, फेथ के लिए जो वॉर हुए हैं, तो उसमें आप वही लोग उनको शहादत करेंगे जो जिसके उनके फेथ है. राइट. अगर यूरोप में जो है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में मेडिवल रिलीजियस वॉर हुए, तो शहादत तो एक पक्ष के लिए शहादत है ना, दूसरे पक्ष के लिए शहादत नहीं है. हाँ, वो सर मेट्रोडॉम यूज हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जो हम रिलीजन के लिए कर रहे हैं. तो अभी रिलीजन के लिए कोई नहीं ये सब कुछ कर रहा था, वो तो दूसरी चीज है ना, तो इसलिए आई थिंक. तो मतलब हमें कहेंगे कि इतने किसान मर गए, मतलब हाँ जब अगर मेरे हिसाब से इसको शहीद नहीं कहेंगे. शहीद हर चीज शहीद नहीं है ना. दूसरा ये कि मैं कोई डिलीवर नहीं कर रहा हूँ जजमेंट की जब इंटरनल टर्मोइल होता है, जब जैसे नक्सलाइट्स या माओइस्ट हमारे देश के हैं, विदेशी तो है नहीं वो. अगर उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी कॉन्फ्लिक्ट में अगर जवान मारे जाते हैं, थिंक अबाउट इट कि उनको शहीद लिखना चाहिए कि उनको कितने मारे गए लिखना चाहिए. ठीक है ना. जैसे कि वेस्टर्न मीडिया है, अमेरिकन मीडिया है. अमेरिकन मीडिया में हमेशा वो किल्ड का इस्तेमाल करते हैं. 14 Marines were killed at Kabul airport in a suicide bombing. क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि हमारा जो ऑडियंस है वो ग्लोबल ऑडियंस है, हम सिर्फ अमेरिकन पब्लिक के लिए नहीं है. तो 14 मैरीन जो मरे हैं वो न्यूज ग्लोबल ऑडियंस के लिए. तो अमेरिकन मीडिया हमेशा किल्ड लिखता है. राइट सर. अमेरिकन मीडिया में शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं होता. तो खैर इसमें कोई जजमेंटल बात नहीं है. कुछ ऐसी प्रैक्टिस है कि हमारे देश का मीडिया जहां तक जो फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं उसमें ग्लोबल मीडिया के बजाय एक नेशनलिस्ट पोजीशन लेके उसकी रिपोर्टिंग करता है.
तो ये चीजें जो है वो मतलब कुछ तो प्रैक्टिस है हमारे देश में। अगर आप किसी मीडिया के लिए काम कर रहे हैं तो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप यही लिखेंगे कि सीमा पर इतने जवान शहीद हो गए या वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन अगर आप दिल्ली में CNN के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं तो आप ये लिखेंगे कि इतने सैनिक जो है मारे गए। तो रिपोर्टिंग में की टर्मिनोलॉजी और जो भाषा होती है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। Can I just intervene, Yes, Subhash yes. Sahab? In fact, it's a very good point and a very interesting one, because if you look at this use of martyr is a very recent one, and it is a misnomer actually, because for one reason that on the borders, on international borders, invariably when there is an international conflict, there is a greater dimension to it. There is a nationalistic fervor to it. So if we look at it 1965 or 71, or say in Kargil, for example, so it's a legitimate use of martyrdom because they defended the country. No, I'm not saying what is Now- legitimate, what is legitimate No, and what is not legitimate. No, just let me complete the point. Please be Now, brief and be brief and precise. Okay. Well, second thing is that in civil war, for example, Maoist, if somebody is fighting, or there is a lynching going on of a policeman, so that way it might not be called martyr. So that is all I just want to say. Even if there could be that's the point. What I'm saying, that if you are a reporter, you have to think about that which terminology you are using. So this is how that in reporting, the kind of language that you are using is important. And Now, moreover, for example, if I could be slightly last bluntly, this is a recent phenomena in the Indian media, that this term is being rapidly used sometimes, it's being used inappropriately. very, very thoroughly, in fact. Even if there are some deaths, for example, in Kisan farmers movement, there is no question of saying them that they are martyrs. Because they died. They were not killed by anybody. They did not die for the country. Anyway, the point is well taken. You all understand what I'm saying. So the only thing is, when you are doing a reporting, you have to be careful that what term you are using. That's important. Next is, what should be your language? Because whichever news organization you are working for, it has you have your own target audience. Now, for example, if you are writing for economic times, and you are writing the term GDP or growth or these economic terms you are rising, so it's quite possible that you don't need to explain what is GDP, because you presume that the audience or the readers of the economic times, they understand what GDP is. You don't need to elaborate it. But if you are writing for a totally local newspaper, the newspaper published from a small town, then perhaps that's again you have to judge it. That for your target audience, you have to think about that whether your audience they will understand simply saying GDP, what GDP is. Is that clear? So your terminology also depends on your target audience for whom you are writing. And in journalistic writing, you are addressing, communicating with the huge audience, but at the same time, you are communicating with one individual. That individual is always in your mind. That I'm communicating with this person. What is his knowledge base? What is his understanding? What are the issues that you are reporting? How to report those issues? What kind of language has to be chosen? So there are some basic principles that you should use spoken language. See and say is the term that is used, spoken language. And then you should have small paragraphs and short sentences. You should not use more very complex sentences, because complex sentences means readability is the first casualty when you use complex sentences. Your reader will have to read it again and again to understand. So spoken language, short sentences, small paragraphs. That's another principle that we have to follow.
in news reporting. So that is the first point, is that news reporting is based on facts. Then we say news item. News item are the small news item, and news report is which is extensive report. Then next come the question of analysis or interpretive reporting or writing. News analysis are important now. For example, if budget is presented in the parliament, so first thing will be you will report the budget factually, because that is reporting. But because budget is very, very important thing, so people would like to know that what are going to the implications of this budget. So you, with the budget story, you can also write an analysis or an interpretive reporting, analyzing the implications of the budget. लोग जानना चाहते हैं कि इस बजट का हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा. तो आप कई बार ये है कि एक न्यूज रिपोर्ट बजट के देते हैं, लेकिन बजट में लोग बजट एक कॉम्प्लेक्स चीज है, तो लोग उसको समझ नहीं पाएंगे. तो आप कई बार उसके लिए एनालिटिकल एक पीस पे लिखते हैं, इंटरप्रेटिव पीस पे लिखते हैं. नॉर्मली न्यूज़पेपर्स पे जैसे लीड होती है, सेकंड लीड होती है, और नीचे एक एंकर होता है. एंकर आपने अखबारों में देखा होगा. Now, for example, can you see it? This is, for example, if you look at it, there is this story. The bottom story is the anchor. This is the anchor. This is lead, this is second lead, and this is anchor. So in newspapers, we have lead, we have second lead, we have double column stories, we have single column stories, and we have news items, small news items. So anchor generally is a kind of analysis of an event. It can be a backgrounder also of some issue. So that's analysis and interpretations are in that kind of stories. So it's clear? Yes, sir. Yes. And then comes the question of the article and editorial. Articles are combination of facts, interpretation, analysis, and opinion. You express your opinion on an issue, your views on that issues. So they are the opinion pieces. Article is combination of all these elements, and it depends on individual writers. तो हर राइटर जो है किसी आर्टिकल्स को अपने फॉर्मेट में लिखता है. कुछ लोग के आर्टिकल्स बड़े फैक्चुअल किस्म के होते हैं, बहुत ज्यादा ओपिनियन वाले नहीं होते हैं. कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जो हेवीली ओपिनियटेड होते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल स्टाइल आल्सो, and on the topic on which you are writing the articles, that what kind of treatment this topic require. Is that clear? Article is combination of all these elements. Then is the question of the editorial. Editorial, you know what is editorial? The opinion of the news organization. Yes, I'm coming to that. You can see this newspaper. You can see it. Yes, sir. So there is main article. Okay. And then here, there are the editorials. That's in all the papers. That there are editorials which are not, there is no name of the author is not appearing in the editorial. Articles, the name will appear. In some newspapers, they have op-ed page also, opposite to editorial page. Op-ed, they call it op-ed page. Op-ed page is because in editorial, you are taking some positions, some political position. Op-ed is counter of that. What are the different other perspectives? What are the other perspective of that issue? Okay. Now, editorial are written, the editorials, they reflect editorial strength of a news organization on any particular issue. So
every news organization has some editorial stand. Newspapers will not call it an ideological stand, political stand, because they perceive that we don't belong to any political party. We don't belong to any political ideological party. But you see, every bit of information or article, editorial, will definitely carry some values. Information is not very neutral, because what kind of information you are collecting, in what way you are presenting the information. So editorials are the editorial stand of newspaper. So there is normally there is editor and there is a team of assistant editor. In a news organization, we are discussing all these concepts in that bits as they existed, as the core values. These days, there are so many other things that occurred now. But editorial means there is a editorial conference in the morning. And there was a time when I was working with the Times of India group. There used to be one editor and some 7-8 assistant editors. The job of the assistant editors was only to contribute articles and editorials. So there used to be an editorial conference in the morning, and all editor assistant editors, before the meeting, they will go through all the newspapers and they will identify the major stories of the day. And then in the editorial conference, it will be decided that what are the topics. Because generally, let's say that in one newspaper, there are 3 editorials. Generally, first editorial is most important issue of the day. Second is another issue of the day. Third may be something which is a lighter vein. Like जमाने में Times of India में पहला editorial strong political issue पे होता था. Third editorial जो है वो जग सुरैया लिखते थे, जिसपे कि कोई featureized type का treatment होता था. Not highly opinionated, but ये light reading का editorial होता था. तो अगर आप first editorial आपका international issue पे है, then you prefer second आपका editorial national issue पे हो. Economic issues होते हैं, कुछ regional issues हो सकते हैं. तो issues of the day, major events of the day are discussed in the editorial conference. और फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन से तीन मतलब हर एक पे 3 नहीं होते, किसी में 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 का पैमाना लेके हम डिस्कस कर रहे हैं. कौन से 3 टॉपिक ऐसे हैं जिन 3 टॉपिक पे एडिटोरियल जाने चाहिए, जिसमें कि एडिटोरियल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. और एडिटोरियल के लिए माना जाता है कि एडिटोरियल्स दे इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द पीपल. एक जमाने में एडिटोरियल बहुत इन्फ्लुएंसर होते थे. एक किस्सा जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटर हुआ करते थे गिरिराज जैन. तो गिरिराज जैन को एक बार एयरपोर्ट पे किसी ने रोक लिया. तो गिरिराज जैन ने उससे कहा कि डू नो आई एम सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द कंट्री, तो आफ्टर प्राइम मिनिस्टर. तो उनका पॉइंट ये था कि मेरे एडिटोरियल से गवर्नमेंट की पॉलिसीज इन्फ्लुएंस होती है. और कई बार हमको भी याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कई बार एडिटोरियल सब छपते थे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या फॉरेन मिनिस्ट्री से या फाइनेंस मिनिस्ट्री से फोन आते थे. तो इतना इन्फ्लुएंस एडिटोरियल्स का होता था. तो एडिटोरियल्स का माना जाता था कि एडिटोरियल्स दे इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द प्रोग्राम्स. पब्लिक ओपिनियन का एक इम्पैक्ट होता है. एडिटोरियल भी है कि एडिटोरियल्स आर कॉल्ड सरोगेट राइटिंग. हैव यू हर्ड दिस टर्म सरोगेट? Surrogate advertising, for example. Have you heard this term, surrogate? Yes. Surrogate term तो बहुत यूज होती है. Some of you are already teacher and research scholars. I have heard. Yes, Amitesh. Yes, sir. What is a surrogate? Surrogate advertising. Let's say what is surrogate advertising? Sir, like the advertisement of bagpiper. That advertisement is of soda, but we all understand that it's of liquor. Yes, yes. Now, for example, आपने कई बार देखा होगा ना bagpiper soda. देखा कि bagpiper is a brand of the whiskey. तो कई बार जो है वो इसको कहते हैं सैरोगेट एडवर्टाइजिंग. आप एडवर्टाइज कुछ और चीज शो कर रहे हैं लेकिन उसको जो है किसी और तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं. देखे ना आप लोगों ने विज्ञापन देखे लिख करके?
Yes, sir. That is surrogate. May I request Pushkar ji, please mute yourself. Okay, thank you. Please continue, sir. Who is saying something? Yes, Meghna. Meghna, can you hear me? No. Dinesh? Dinesh, can you hear me? So Meghna is asking that, why someone, need to, use surrogate reporting and all. तो मेघना तुम बोल क्यों नहीं रही हो? चैट बॉक्स में क्यों डाल रही हो? Why you are shy of speaking? मेघना इसलिए करते हैं कि because government has banned advertisement of the liquor and the cigarettes and tobacco. That is banned. That's why these brands, they use surrogate advertising to promote their brand because they cannot advertise for the liquor, for whiskey. So black pepper soda is primarily, black pepper is known for the whiskey. Black pepper is known for the soda, for the mineral water. So they advertise black pepper brand as soda, and actually they are promoting the brand that is black pepper. How advertising work, in fact? Because advertising message is a kind of a bombardment on your mind. आपको लगता है कि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं देख रहे हैं कमर्शियल ब्रेक में, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि जब कमर्शियल ब्रेक होता है तो जो वॉल्यूम है कमर्शियल्स का उस थोड़ा तेज हो जाता है, क्योंकि जो उसके एडवर्टाइजर्स हैं उनको मालूम होता है कि कमर्शियल ब्रेक है अगर, तो लोग अब उठ के कहीं जा रहे हैं, तो वो वॉल्यूम तेज इसलिए होता है कि दी मैसेजेस दे चेज यू. और एडवर्टाइजिंग इस तरह काम करती है कि आप कभी भी अगर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो यू विल नॉट बाय समथिंग, सम ब्रांड व्हिच इज नॉट नोन टू यू. होता है ऐसा कि नहीं होता है? डज इट हैपन, अनुजा? यस अनुजा, कैन यू हियर मी? ईशा, Isha, can you hear me? Yes, Anushri. Yes sir, होता है ऐसा. होता है ना? Do you buy, शॉपिंग करती हो कोई जो ब्रांड का नाम ही ना सुना उसको खरीदती हो? नहीं सर, सब जब पैसे कम रहते हैं तब. जब पैसे कम रहते हैं तब, क्योंकि वो जो ब्रांड नोन नहीं होता वो सस्ते मिल जाता है ना. तो जनरली हम लोग की शॉपिंग पैटर्न इससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता है कि जो ब्रांड का नाम हमने सुना होता है उसी ब्रांड को हम खरीदने के लिए वी आर इंक्लाइंड टू बाय दैट ब्रांड, क्योंकि हमको लगता है इसमें क्वालिटी होगी. तो ब्रांड जो होते हैं ब्रांड क्वालिटी भी इंश्योर करते हैं एक हद तक, और ब्रांड इस तरह भी होते हैं कि ब्रांड को आप खरीदने के लिए, तो दैट्स हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क. एंड surrogate advertising is something which is promoting some brand which happen in the name of something else. That is surrogate advertising. So coming back to the surrogate writing is in newspapers editorial, editor decides what editorial stand we have to take. But on this particular issue, what should be our stand? Stand का मतलब एक political stand होती है, एक ideological stand होती है कि whether we have to appreciate this, or we have to condemn it, or we have to criticize it. This government has announced certain policies and programs, then you take a stand on that. So editorial will decide what kind of editorial stand we have to take. Editorial stand, what position we will take. So it is called surrogate writing because you are writing for the editor. अगर आपकी ओपिनियन किसी इशू पे कुछ और है और एडिटर कहते हैं आपको कि आपको इस स्टैंड लेकर एडिटोरियल लिखना है, तो यू हैव टू टेक दैट स्टैंड. तो you don't have freedom to write your own opinion when you are writing an editorial. You have to write the editorial for the editor. Is that clear? That's why it's called surrogate writing.
because you are not writing your own opinion, you are writing for the editor. Is that clear? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. And Uh, then, yes. So sometimes people get confused between two terms, that is neutrality and impartiality. So can you please highlight the difference, how to use this thing differently while practicing journalism? Well, you say neutrality is something, I think, a journalist cannot afford to be neutral between right and wrong. Impartiality, right kind of term, that you are impartial. When you are reporting some political issues, you are incorporating all the point of views. अगर कोई इशू पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि किसका रिएक्शन लेना है, किसका रिएक्शन लेना है, एक स्टोरी कंप्लीट करने के लिए. अगर गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी अनाउंस की है और आप उस पर रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसमें अपोजिशन पार्टीज के व्यूज भी इनकॉर्पोरेट करते हैं. दैट इज इम्पार्शियलिटी. न्यूट्रलिटी इज समथिंग, न्यूट्रल टर्म मींस यू आर न्यूट्रल. लेकिन क्या पॉसिबल है रिपोर्टर के लिए कि ही शुड बी न्यूट्रल? In a democracy, as a reporter, you have to discharge watchdog functions also. And when you say watchdog functions, means you are keeping an eye on the government. You are exposing the corruption and misdeeds of those who are holding the levers of power. That is investigative journalism. That's the watchdog function of media. So where you can be neutral, you cannot be neutral. But impartial means when you are even reporting some corruption, because you are incorporating all the versions of that corruption, even including the version of those who are charged of the corruption. So that term should be very clear, that whether you are neutral or you are impartial. In editorials, in articles, in op-ed pages, you are not neutral, neither are impartial, but you are expressing your opinion, maybe very strongly, not very strongly. It depends, but you are expressing your opinion and there is no question of impartiality. But the only thing is that in an ideal situation, even your article writing should be based on the facts and evidences. आप कोई हवा में नहीं लिख रहे हैं, मतलब जो है आप कोई घटना घटती है तो उसके फैक्ट्स को आप रिव्यू करते हैं, उसका आप एनालिसिस करते हैं और फिर उस पर एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं जो आपका आर्टिकल होता है. तो आर्टिकल मीन्स एक्सटेंसिव रीडिंग and then formulating your own position. आप कोई ओपिनियन फॉर्म ऐसे ही नहीं करते हैं, आपकी ओपिनियन होनी चाहिए इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, नहीं तो आपका आर्टिकल मिसलीडिंग होगा. इट शुड बी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन दैट यू एक्सप्रेस. और एक आइडियल सिचुएशन में जो है वो जनरली क्या होता है कि जैसे कि माना एडिटोरियल ने आपसे कहा कि एडिटर ने कहा कि इस पर को एडिटोरियल लिखना है जिसमें कि आपकी अपने ओपिनियन के अगेंस्ट आप लिख रहे हैं उसमें, तो कई बार एडिटर्स को समझ जाते हैं कि इनकी ओपिनियन डिफरेंट है, तो आपको कह सकते हैं कि एक आप आर्टिकल लिखिए. तो इसलिए आर्टिकल कई बार ऐसे हो सकते हैं जो कि एडिटोरियल की लाइन को टो ना करते हो, जो कि डिफरेंट हो. ओपेड आर्टिकल का मतलब ही मैंने बताया था कि जो कि एडिटोरियल स्टैंड होती है उसका जो अपोजिशन कोई स्टैंड है तो उसको रिफ्लेक्ट करना. तो एक जो आइडियल सिचुएशन होती है उसमें ये माना जाता है कि एक न्यूज़पेपर को या न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को सारे पर्सपेक्टिव जो किसी इशू पे है, जितने पॉइंट ऑफ व्यूज में जितने भी आइडियाज हैं वो सब रिफ्लेक्ट होने चाहिए. आपके एडिट पेज पे एडिटोरियल स्टैंड एक है, लेकिन आपके आर्टिकल्स ऐसे भी होने चाहिए जो एडिटोरियल स्टैंड से जो है मेल ना खाते हो. तो एक जमाने में सारे अखबारों में जो असिस्टेंट एडिटर्स होते थे वो डिफरेंट पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के होते थे, तो उसमें जो आर्टिकल छपते थे उसमें वैरायटी होती थी. जो असिस्टेंट एडिटर्स का ओरिएंटेशन एक खास पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है उसका भी छपेगा. तो सारे जो पर्सपेक्टिव है किसी इशू पे 4, 5, 6 तरह के आइडियाज हैं, उस तरह के सब आर्टिकल्स जो है वो उसमें जो है वो छपते थे. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो और हमने और क्या शेयर किया था मैंने आप लोगों से, what were other points that we discussed?
So we discussed. Can you hear me? Hello, am I audible? Saket. Yes, Yes, sir. sir. So the study material that I shared with you, it says that one category was news item, which I have discussed. News item is small story. News report is very extensive report on any issue. Then news analysis is, which I said the anchor stories are generally news analysis. Then interpretation and investigative reporting that we discussed. Investigative reporting is very, very important because investigative reporting needs a great amount of investigation. You have to collect huge amount of facts and evidences. क्योंकि आप जब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करते हैं तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हमेशा किसी चीज को एक्सपोज करती है, किसी करप्शन को एक्सपोज करती है. इन्वेस्टिगेटिव का मतलब ये हुआ. तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में जो है वो आपको टोटली, क्योंकि आप किसी के अगेंस्ट स्टोरी कर रहे हैं, तो आपकी स्टोरी जो है बिल्कुल फैक्चुअल एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए, नहीं तो आपको कई बार कोर्ट केसेस फेस करने पड़ते हैं. उसके बाद आता है फीचराइज्ड और फीचराइज्ड रिपोर्टिंग. व्हाट इज फीचर? व्हाट इज ए फीचर? Just tell me. Human interest story is a feature, sir. सर एक किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी घटना को लेकर के जस्ट लाइक रिपोर्ट करना. जैसे कोई क्या बोलते हैं, कोई आदिवासियों की रैली है तो उसको लेकर के फिर एक रिपोर्ट करना, या फिर जैसे किसानों के बीच कोई घटना घटी है तो उसको लेकर के एक रिपोर्ट करना, अलग अलग लोगों से बातचीत करके एक रिपोर्ट पेश करना, ये एक फीचर रिपोर्टिंग हो सकता है. फीचर से आशय यह कि फीचर इज ए ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी. आप जब फीचर लिखते हैं तो आप एक ह्यूमन एंगल से स्टोरी को लिखते हैं. जैसे माना कि कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बड़ी बिल्डिंग कोई कोलैप्स कर जाती है. एक तो आप रिपोर्ट करते हैं कि उस बिल्डिंग कोलैप्स में क्या हुआ, कितने लोग मरे, क्या हुआ, कैसे हुआ, 5W1H, who, what, where, when, how, कैसा जवाब आप देते हैं न्यूज रिपोर्ट में. लेकिन माना कि उस ट्रेजेडी में एक फैमिली के माना कि जो है वो बहुत सारे लोग मारे गए और एक ही उस फैमिली से 1-2 लोग ही बचे हुए. तो अब उन लोगों के दर्द को कैप्चर करना, उनके इमोशंस को कैप्चर करना, वो फीचर है. तो फीचर का मीनिंग ये है जनरली कि फीचर में आपको एक लिबर्टी होती है कि आप खूब एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें, अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें, और फीचर में इमोशंस ज्यादा होते हैं, फीलिंग्स ज्यादा होती हैं. अब जैसे एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि माना आपको किसी एक बड़ी स्टोरी को आप एक इंडिविजुअल के माध्यम से भी कह सकते हैं. माने गांव की कोई कहानी है अगर, तो आप एक ही व्यक्ति के साथ बात करके उस गांव की कहानी कह सकते हैं, जो एक फीचराइज ट्रीटमेंट है. तो फीचराइज ट्रीटमेंट का मतलब किसी भी चीज को एक ह्यूमन एंगल से जो है वो रिपोर्ट करना. तो कई बार आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको लगता है कि ये इशू ऐसा इशू है कि जिसकी रिपोर्टिंग, स्ट्रेट रिपोर्टिंग में बात बन नहीं रही है, तो आप सोचते हैं कि इसमें फीचराइज जो है रिपोर्टिंग की जाए. तो आप स्ट्रेट रिपोर्टिंग में फीचर के एलिमेंट्स भी इंक्लूड कर देते हैं, उसमें ह्यूमन एंगल भी उसमें आप ऐड कर देते हैं. जैसे कि जब जो है वो ये जो कोविड के बाद जो लाखों मजदूर जो है वो अपने घरों को गए थे दिल्ली से, तो उसमें कई स्टोरीज आई थी, बड़ी ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज आई थी. एक लड़की साइकिल में जो है अपने फादर को बैठा करके कई 150-200 किलोमीटर साइकिल चला के घर ले गई. अब एक इंडिविजुअल की स्टोरी है जो एक फीचराइज स्टोरी बन सकती है. तो उस दौर में जब लॉकडाउन लगा था तो माइग्रेंट्स वर्कर का जिस तरह से आना जाना हुआ था, उसमें बहुत सारी स्टोरीज इस तरह की आई थी जो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज थी, जिसमें आपने एक इंडिविजुअल पे स्टोरी की थी, जिस स्टोरी बहुत ज्यादा फैक्ट और एविडेंसेस नहीं होते. एक स्टोरी सिर्फ इतनी स्टोरी है कि एक लड़की जो है वो साइकिल में अपने फादर को लेके वो गई थी, 100-150 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया था. तो 1200 किलोमीटर
1200 किलोमीटर से वो ट्रैवल करी थी। 800 किलोमीटर ट्रैवल किया था। ज्योति नाम था शायद उसका, ज्योति Yes, नाम था। हाँ, तो ये स्टोरी है जो जिसको आप ह्यूमन एंगल से ट्रीट करते हैं, क्योंकि इस स्टोरी को रिपोर्ट करने में मजा नहीं आएगा। इस खाली रिपोर्टिंग काफी नहीं है, बल्कि इसको फीचराइज ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो फीचराइज का मतलब होता है कि फीचर में आप खूब जो है वो एडजेक्टिव इस्तेमाल करिए, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करिए, और उसको एक जितना इंटरेस्टिंग हो सके उतना इंटरेस्टिंग बनाइए। एक कई बार जो है जर्नलिज्म स्कूल में लोग कहते थे कि फीचर इंटरटेनमेंट है, ऐसा नहीं है। फीचर्स जो है वो इंटरटेनमेंट के भी हो सकते हैं और फीचर्स किसी ट्रेजेडी के भी हो सकते हैं। तो ये जो है वो फीचर का एक डायमेंशन है। फिर हमने डिस्कस किया था, और जो मैंने बताया था आपको कि इंटरव्यूज होते हैं, कमेंट्रीज होती हैं, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, प्रोफाइल, रिव्यूज, रिव्यू आर्टिकल, है ना। अब रिव्यू आर्टिकल से होता है कि जैसे आपने कोई बुक आपने पढ़ी और उस बुक पे आप रिव्यू लिखते हैं बुक का। तो कई बार तो आप जब बुक का रिव्यू लिखते हैं तो आप स्ट्रेट रिव्यू लिखते हैं कि बुक में क्या क्या कहा गया है। रिव्यू आर्टिकल का मतलब है कि आप बुक्स में जो भी कहा गया है उस पर अपनी तरफ से भी एक आर्टिकल लिखते हैं, अपनी ओपिनियन भी उस पर डालते हैं। बुक में जो कहा गया है उसको आप काउंटर करें, उसको आप सपोर्ट करें, वो भी आप उसमें लिखते हैं, उसको कहते हैं रिव्यू आर्टिकल। प्रोफाइल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोफाइल किसी इंडिविजुअल का प्रोफाइल देना, मतलब वो इंडिविजुअल बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, और एक आम आदमी पर भी आप एक प्रोफाइल फीचर कर सकते हैं, आम आदमी पे भी, जो कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी किसी इंडिविजुअल के बारे में करना कि उसकी जिंदगी क्या है, उसके सपने क्या हैं, किस तरह की जिंदगी जीता है, उसकी आमदनी कितनी होते हैं, खर्चे कितने होते हैं। अब आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में एक जो ऑटो वाला होता है वो एक खलनायक की तरह होता है, क्योंकि हमेशा लोग ऑटो वालों से नाराज रहते हैं कि ये पैसा ज्यादा ठगते हैं और लूटते हैं। लेकिन आप कभी ऑटो वाले की जिंदगी पर एक फीचर कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूँ ना कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी। एक ऑटो वाला सड़कों में चलाता है, 8-8 घंटे वो ऑटो चलाता है, हैवी ट्रैफिक पे रहता है, 2-2 घंटे के ट्रैफिक जैम होते हैं, उसकी इनकम कितनी होती है, उसका कोई मेडिकल कवर नहीं होता है, एक्सीडेंट होगा तो कुछ नहीं मिल रहा है उसका। तो एक ऑटो ड्राइवर की जिंदगी पे आप एक फीचराइज स्टोरी कर सकते हैं कि उसकी जिंदगी क्या है। एक कांस्टेबल की जो इमेज है, मतलब जो है, मतलब खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल से लोग डरते हैं ना कि नहीं? कांस्टेबल से डरते हैं लोग, पुलिस कांस्टेबल से। यस सर। एक डर लगता है ना पुलिस से लोगों को। यस। ये सही है कि जो मैं कह रहा हूँ? आदित्य, yes Aditya, can you hear me? Nichita? Sir? Yes, sir. Nichita, where do you stay? Sir, I stay in Indore. Yeah, sir. What is the image of police in Indore? People get frightened of police Pardon, constable. sir? People get frightened of police or not? Sir, it depends upon how the situation is, like during the COVID times. So people used to, it was mandatory here to wear masks even in the car. So if if they see any constable right there in front of them, or he's going to check, so they used to just wear their mask so that the fine was saved. So it depends on how the situation is outside, but generally both the relationship between the police and the like the citizens of the city is really nice. Like no such what shall I say, that scare is not there. People are quite open. If they have any issues, they directly go to the police stations. That's what I feel, sir. Varun Kapoor is a police officer there. Do you know him? Varun Kapoor. No, sir. Varun Kapoor is senior police officer there. He's okay. Very, very creative person, very good photographer. Well, you see, Yes, it all depends. It all depends. Yeah. Go ahead. So another thing is there is he's quite famous. There is one traffic police over here who's very
good with his like skills while controlling the traffic on a signal. So he literally dances when he's controlling the traffic. He's become quite popular these days. That's a And that's a these good things idea are for quite for a creative. feature. I think so, because because human features is a human interest story. So Yeah. I think, yeah, people might get attracted towards these stories, like how constable is creatively handling the traffic. That's an interesting story for a feature. Yes, sir. So can I add here? Yes. So the same way what she's saying, I have seen there was a constable, I mean, traffic police guy. He was maintaining, I mean, the traffic through his dancing, and that story was captured in Odisha. Actually, it was broadcasted as well as I mean, written the same way. That's a very old story. I think 2-3 years back that was Yeah, there. even like what I am saying has also, like, it has been covered on Yeah. television as Yes. well as on like some of the shows and Correct. newspapers as well. Correct. So I mean, it's I quite think that old. is why like people like started doing the same thing now. Yeah, I think following the same thing. yeah. Right. Right. Well, that's true. Now, for example, in Madhya Pradesh is relatively peaceful state. Yeah. Rajasthan is also relatively peaceful state. Uttarakhand also is by and large peaceful state. So police is people, the common people don't get frightened by the police. There is a different kind of relationship. But if you go to Bihar and UP, situation is totally different. Once in Greater Noida, I met a police officer. So मैंने उसको पूछा कि आप why you are always so aggressive while dealing with the people. So he told me that in Greater Noida, there is some semi-criminal community that there they indulge in all kind of crimes. और उसने कहा कि पुलिस अगर डर पैदा नहीं करेगी तो नोएडा में जो है जीना मुश्किल हो जाएगा. तो people that fear has to be there to control these people. तो मेरा आशय ये था कि the point that I was mentioning was that in Uttar Pradesh and Bihar, anybody from Bihar here? Yes, sir. हाँ राजीव, तो बताओ बिहार में ऐसा है ना कि पुलिस हाँ, से सर. लोग घबराते हैं? मैं तो नहीं घबराता हूँ, लेकिन लोग घबराते हैं सर. नहीं, तुम ऐसे काम करती होगी तुम्हें घबराना पड़े? नहीं. तो नहीं, सर अभी हाल में जो है एक इंसिडेंट बिहार में घटा था कि 2 पुलिस ऑफिसर जो है जज के चैम्बर में घुस करके उन्होंने शूट कर दिया. जज शूट नहीं किया, पिटाई किया. हाँ, पिटाई किया. बिटन. एनीवे, मेरा पॉइंट ये था कि कई स्टेट्स में पुलिस कांस्टेबल या पुलिस की इमेज ये होती है कि एक फ्रैटनिंग इमेज होती है. ये सर पुलिस रिफॉर्म की चीज है ना सर. पुलिस रिफॉर्म पे इस पे एक स्टोरी छप सकती है सर. पुलिस रिफॉर्म को लेकर एग्जैक्टली मैं जो कह रहा था ना कि फीचराइज ट्रीटमेंट का मतलब है कि आप कभी कांस्टेबल की जिंदगी के बारे में सोचिए. एक कांस्टेबल की ड्यूटी कितने घंटे होती है, उसकी सैलरी कितनी होती है और उसकी ड्यूटी किस तरह की होती है. अब आप ये सोचिए कि एक कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर 24 घंटे जो है क्रिमिनल से डील करता है. रात को 12 बजे अगर कहीं क्या है, फैमिली में प्रायोरिटी क्या है, ये सब चीजें. हाँ, मतलब कहीं रात को 12 बजे डकैती हो जाए तो सीधे उसको वर्दी पहन के जो है दौड़ना पड़ता है. तो कभी हमने जो है वो ऐसी स्टोरीज भी करनी चाहिए कि एक कांस्टेबल की लाइफ क्या होती है, उसके 24 घंटे कैसे बीतते हैं, वो किस तरह के लोगों के साथ डील करता है, और उसको एनालाइज करना चाहिए कि जब 24 घंटे आप क्रिमिनल से डील करेंगे और जिस तरह से आपको डील करना पड़ता है तो उसका पूरा असर आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ता है. तो जिन स्टेट्स में जगहों पे क्राइम ज्यादा है तो वहाँ पुलिस का फियर भी ज्यादा होता है. पुलिस हैज टू बी अ बिट ब्रूटल एंड पुलिस हैज टू क्रिएट अ फियर, क्योंकि फियर फिर आम जनता के लिए भी हो जाता है और क्रिमिनल्स के लिए भी हो जाता है. तो ओनली पॉइंट वाज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज गुड फॉर द फ्यूचर ट्रीटमेंट ऑफ द स्टोरी. कि आप ऑटो वाले की जिंदगी पे आप लिखते हैं, आप एक पुलिस कांस्टेबल की जिंदगी पे लिखते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, कोई ठेले वाला है, कोई होमचा वाला है, कोई छोटा दुकानदार है, उसका प्रोफाइल फीचर्स आप कर सकते हैं. तो फीचर इज समथिंग which is a different kind of a writing. Is that clear? Then, yes, sir. Then I mentioned in my study battle that I shared with you is there are 2 kinds of reporting. One is called episodic reporting
and another is called thematic reporting. Episodic reporting is event-based reporting, focusing on an event. But when it occurs, when an event and it happens, then there is some background behind it. एक चीज अचानक से नहीं होती है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड होती है कि क्या हुआ. तो episodic journalism means reporting an event, and thematic journalism means reporting the process also that goes beyond happening of that event. ऐसा हुआ कि मतलब प्रोसेस को कैप्चर करना और इवेंट को कैप्चर करना. ठीक, क्लियर है? इज दैट क्लियर? सर एक बार थीमेटिक वाला दोबारा बताएंगे? थीमेटिक का मतलब प्रोसेस को जो है रिपोर्ट करना. कोई घटना अगर होती है, घटना तो अचानक से नहीं होती है, उसके पीछे कोई एक बैकग्राउंड होती है कि घटना क्यों हुई. तो उस प्रोसेस को जो है वो एनालाइज करना. कि इवेंट तो होता है, लेकिन इवेंट एक प्रोसेस के बाद ही होता है. आमतौर पे कोई इवेंट होता है तो उसके पीछे एक प्रोसेस होती है कि इवेंट हुआ क्यों. मतलब आपके इलाके में पुल गिर गया और उसमें 15 लोग मर गए, तो ये तो आपने रिपोर्टिंग की, लेकिन उसकी पूरी प्रोसेस क्या थी, पुल क्यों गिरा, कैसे गिरा, उसके कंस्ट्रक्शन में क्या प्रॉब्लम्स थी, उसमें क्या क्या फॉल्ट थे, उस पूरी प्रोसेस के बारे में. पुल गिरने की तो आपने रिपोर्टिंग कर दी है, लेकिन पुल ऐसे तो नहीं गिरा. पुल गिरने के पीछे एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को कैप्चर करना, तो वो थीमेटिक जर्नलिज्म हुआ. Am I clear? Yes sir. Clear Yes है? sir. Yes sir. सर मर्डर फॉर डाउरी विल कम अंडर थीमेटिक और दूसरे वाले? कौन सा? सर मर्डर ड्यू टू डाउरी विल कम अंडर एपिसोडिक और थीमेटिक जर्नलिज्म? डाउरी की दहेज ना? Yes sir. Well, dahej is, for example, if there is some event has occurred which is related to dowry, some arrest were made or something, whatever it is. So Okay. that is first we will report the event. Then that Okay. event has occurred. There is a background of that event. अब उसके बैकग्राउंड में एग्जैक्टली क्या है, तो ये तो एक हाइपोथेटिकल बात होगी सोचना, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो है वो फिर पूरी प्रोसेस पे जाना है कि शादी कैसे हुई थी, कैसे लेन देन होता है, दहेज क्या होता है, कैसे टॉर्चरिंग होती है, कैसे लोग डिमांड करते हैं. तो उस पूरे बीच दहेज में मारपीट की कोई घटना हुई तो उसको भी रिपोर्ट करते हैं? बीच में कोई मारपीट की घटना हुई हो उसको भी रिपोर्ट करेंगे? मतलब उसके सारे डायमेंशंस का. दूसरा ये कि आप दहेज के पूरे इश्यू को रिपोर्ट कर सकते हैं. जैसे कि अभी भी जो है वो कई जगह मैं मतलब मैं बिहार यूपी इसलिए कहता हूँ कि स्टेट्स को मैं ज्यादा जानता हूँ, मैंने काफी ट्रेवल करता रहता हूँ, कि बिहार यूपी में भी डाउरी बहुत कॉमन है. और डाउरी सिर्फ वही नहीं है, डाउरी वो भी लोग तक लेते हैं जो कि सिविल सर्विसेज में होते हैं. मतलब आईएएस ऑफिसर डाउरी देते हैं. यस सर, बोली लगाई जाती है. बोली लगती है एज पर द प्रोफेशन, उस तरह से फिर बोली लगती है. आप गवर्नमेंट सर्विस में तो आपकी बोली ज्यादा लगती है. यस सर. पत्रकारों को की बोली लगती है, पत्रकारों को कुछ नहीं मानता है. नहीं लगे बोली सर, अच्छा है, अच्छी बात है. वैसे नहीं लगती है पर ये अच्छा ही है. नहीं मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ. मतलब कि शादी ब्याह के मामले में तो अगर डाउरी से कोई डेथ होती है तो आपके कई ट्रीटमेंट्स है. एक तो आप उसी इंसिडेंट की प्रोसेस कर सकते हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, है ना. एक जो है वो आप पूरे डाउरी के इश्यू से पूरी एक बैकग्राउंड स्टोरी कर सकते हैं. आप पुलिस केसेस की छानबीन कर सकते हैं कि पिछले 6 महीनों में या 1 साल में कितने डाउरी केसेस हुए. आप पूरा बैकग्राउंडर कर सकते हैं कि 5 साल में कितने डाउरी केसेस हुए और किसमें फेक थे, कितने जेन्युइन थे, किसमें कन्विक्शन नहीं हुई, किसमें कन्विक्शन नहीं हुई. अब मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन आजकल जो है वो डाउरी की केसेस का मिसयूज मैंने कई 2-3 जगहों पे देखा है कि जब ऐसी कोई वायलेंस नहीं थी, ऐसा कोई मिसट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन तब भी उसके डाउरी का केस बनाया गया. और अब वो डाउरी के इन्होंने जो कानून बना दिए हैं वो बड़े सख्त है. मतलब कि उसमें इमीडिएट अरेस्ट है जो है. एक बार दिल्ली में जो है वो एक 80 साल के बुजुर्ग और उनकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया कि बहू ने आरोप लगा दिया कि उनको टॉर्चर करते हैं डाउरी के लिए. बाद में पाया गया कि केस पूरा फेक था. तो ये भी चीजें होती हैं. तो अब डाउरी के इश्यू पे कई डायमेंशन से स्टोरी की जा सकती है. ठीक है.
सर तो ये एपिसोडिक में आया या थीमेटिक में आएगा? नहीं, ये दोनों में आएगा। मतलब ऐसा है कि एक अच्छा, तो ठीक है। एकदम जर्नलिज्म में एकदम कंपार्टमेंटाइजेशन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार आप कोई चीज लिखते हैं तो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आप कई बार स्ट्रेट रिपोर्टिंग के थ्रू बैकग्राउंड देके उसको प्रोसेस को भी कैप्चर करते हैं। एक जो मैंने कहा ना, एक न्यूज स्टोरी तो स्ट्रेट होती है कि घटना हुई है, इस घटना में ये हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट रिपोर्टिंग आपकी रिपोर्टिंग एपिसोड और थीमेटिक का कॉम्बिनेशन हो सकती है। मतलब जैसे ऐसा कई नहीं बार कि आप घटना घटने के बाद उसके लेयर्स समझ में आते हैं कि ये किस वजह से घटना हुई थी। हाँ हाँ, तो आमतौर पे अच्छी रिपोर्टिंग वो भी है जो जिसको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, रिपोर्ट का एक्सटेंसिव रिपोर्ट है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एलिमेंट्स। आप इवेंट को भी रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रोसेस को भी रिपोर्ट कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। फिर जो है वो हमने डिस्कस किया था कि जो है वो थ्री स्ट्रीम ऑफ जर्नलिज्म हमने डिस्कस किया था। हमने फंक्शंस ऑफ मीडिया पे डिस्कस किया था कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एजेंडा सेटिंग। फिर हमने कहा था कि 3 स्ट्रीम्स ऑफ जर्नलिज्म, एक तो पेज 1 जर्नलिज्म, पेज 3 जर्नलिज्म, पेज 7 जर्नलिज्म। नाउ इंफॉर्मेशन मीन्स टू इन्फॉर्म द पीपल। न्यूज जो हम देते हैं, न्यूज के फंक्शंस हैं टू इन्फॉर्म द पीपल। इन्फॉर्म सिटीजनरी इज फाउंडेशन ऑफ ए डेमोक्रेसी। अगर लोग इन्फॉर्म नहीं होंगे, मिसइन्फॉर्म होंगे, तो दैट मीन्स यू आर वीकनिंग द डेमोक्रेसी। Democracy means people are informed and they can form a informed judgment and vote on the basis of informed or the basis of it as an informed citizen. Next, हमने कहा था education. So news is primarily to inform the people. Education is articles, editorials. These are which impart the education, which impart the people about the issues of the day. उनको educate करते हैं। इंटरटेनमेंट का मतलब हम लोगों का एंटरटेनमेंट का एलिमेंट भी होता है, एक सेलिब्रिटीज जर्नलिज्म जिसको कहते हैं। फिल्म स्टार के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, फिल्म स्टार्स की तमाम स्टोरीज आती रहती है। मतलब कौन मालदीव में पहुंचा हुआ है, कौन गोवा में क्या कर रहा है, पिक्चर्स आती रहती है, इंटरटेनमेंट। एजेंडा सेटिंग का मतलब है कि एजेंडा सेटिंग पे जो है वो फिर बाद में और लंबा डिस्कस करेंगे कि मीडिया एक एजेंडा भी सेट करता है, क्योंकि जो चीज मीडिया रिपोर्ट करता है उसी चीज के बारे में हम सोचते हैं, उसी चीज के बारे में ओपिनियन फॉर्म करते हैं। अगर किसी घटना को मीडिया रिपोर्ट नहीं करता है तो हमारे लिए वो घटना घटी ही नहीं। ठीक है ना, क्लियर है? तो मीडिया जिन इश्यूज को जो है वो उठाता है उसी के बारे में लोग सोचते हैं, उसी के बारे में लोग ओपिनियन फॉर्म करते हैं। जो इश्यू मीडिया में नहीं है वो इश्यू हमारे लिए है ही नहीं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये कहा जाता है ना कि मीडिया जो रिपोर्ट करता है तो मीडिया हमको ये बताता है कि व्हाट वी शुड थिंक अबाउट, these are the issues before the nation, these are the issues for our society, we should think about those issues. So that is the role of the media, to inform the people of the major issues of the day, and then people think that these are the issues that are confronting us. And second is how media report these issues, which we have discussed, that how framing of a news story, what is your headline, what is the angle of the story. So it is said that media, one thing is that media informs us that what we should think about. That means what we should think about means the issues that are being reported by the media. And second is how to think about means that what the framing of the story, what the angling of the story. Is that clear? Now these 3 terms are used: page 1 journalism, page 3 journalism, and page 7 journalism. पेज 3 जर्नलिज्म आपने सुना होगा? यस सर। व्हाट इज पेज 3 जर्नलिज्म? पेज 3 एक मूवी भी आई हुई थी, मधुर भंडारकर की। व्हाट इज पेज 3 जर्नलिज्म? सर उसमें वही इंटरटेनमेंट की, बॉलीवुड से या फिर सिनेमा से रिलेटेड जो भी मूवीज होती है, गॉसिप्स होती हैं। एग्जैक्टली, इंटरटेनमेंट, सेलिब्रिटीज के बारे में, उनके किसका ब्रेकअप हो रहा है, किसकी शादी हो रही है, किसकी शादी टूट रही है, ये सब स्टोरी जिसमें होती है। लेकिन इसको पेज 3 क्यों कहते हैं? ये नहीं पता है सर। बताओ ऐश्वर्या, बताओ पेज 3 क्यों कहते हैं इसको? कलरफुल ये होता है सर, चटका, इसमें चटकारे होते हैं, मतलब कि मसाला होता है। पेज 3 क्यों कहते हैं उसको? पेज 3 मतलब कि पेज 3 टर्म्स तो सबने सुनी है ना?
ये सर इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के बाद आता है, इंटरटेनमेंट में आता है। क्योंकि सर ये पेज 3 पे होता है इसलिए। पेज 3 पे होता है क्या? नो सर, नहीं सर, मतलब मोस्ट ऑफ पेपर न्यूज़पेपर्स में सर सेकंड लास्ट पेज पे होता है। एक्चुअली ऐसा था कि जो ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर हुआ करते थे उसमें पेज 1 पे होती थी खबरें, न्यूज, मेजर स्टोरी जो भी होती थी। पेज 3 पे होता था इंटरटेनमेंट, और पेज 7 पे होता था एडिटोरियल और आर्टिकल। तो पेज 3 उसके बाद एक प्रॉपर नाउन बन गया। पेज 3 जर्नलिज्म एक ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म बन गया। ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म मींस इट इज अबाउट सेलिब्रिटीज, अबाउट द सॉफ्ट स्टोरीज, अबाउट द गॉसिप ऑफ द बॉलीवुड। तो पेज 3 एक कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल होना चाहिए। तो पेज 3 जर्नलिज्म इज नॉट एग्जैक्टली पेज 3 नाउ। अब तो कई बार पेज 1 पेज 3 होता है, नहीं? सर कौन से न्यूज़पेपर में होता था? आपने क्या नाम लिया था? जो ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर होते थे, ट्रेडिशनल पहले वाले, पहले मतलब ट्रेडिशनल, उसमें पेज 3 पे इंटरटेनमेंट होता था, पेज 1 पे खबरें होती थी, बड़ी खबरें मतलब जो है। जो सर टैबलॉइड में भी जो है इस तरह का प्रयोग किया गया था पेज 3 टैबलॉइड जर्नलिज्म बाय एंड लार्ज सेंसेशनल जर्नलिज्म, इट इज पेज 3 जर्नलिज्म। या टैबलॉइड जर्नलिज्म तो वही है मतलब जो है। एंड टैबलॉइड जर्नलिज्म सेंसेशनल जर्नलिज्म आल्सो। यस सर, they place a story out of context, उनको सेंसेशनलाइज करना। हमने एक पहले भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट इज एज जर्नलिस्ट, एज रिपोर्टर, यू मेक योर स्टोरी इंटरेस्टिंग, and making a story interesting means you are adding some element of drama also. तो अब ये कि सेंसेशनलाइज करना, ड्रामेटाइज करना, और उसको एकदम जो है वो कहीं मैंने आपसे शेयर किया था कि जो है वो उसको जो है वो इंटरेस्टिंग बनाना, और के चक्कर में आप कितना ड्रामेटिक उसको करते हैं। अब आप न्यूज चैनल्स को अगर देखें तो इंटरेस्टिंग के बाद ड्रामा उसमें ज्यादा हो गया। तो इंटरेस्टिंग आप स्टोरी को बनाते हैं, क्योंकि कोई भी स्टोरी अगर डल और ड्रैप भी है तो एक जर्नलिस्ट आपको ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि वो इंटरेस्टिंग लगे। जैसे एक टीवी रिपोर्टर की पहली एक्टिविटी बताया जाता है कि उसको जब वो पीस टू कैमरा करता था तो दिस शुड रिफ्लेक्ट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, जब कोई न्यूज को ब्रेक कर रहे हैं, मतलब भले इतनी बड़ी खबर ना हो लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि देयर हैज टू बी एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई पेज 1, पेज 3, पेज 7 जर्नलिज्म आर कॉल्ड बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि ट्रेडिशनल न्यूज चैनल पेज 1 यूज्ड टू बी न्यूज, पेज 7 यूज्ड टू बी एडिटोरियल आर्टिकल, एंड पेज 3 यूज्ड टू बी एंटरटेनमेंट। लेकिन आज अगर हमें देखें तो पेज 3 जर्नलिज्म पेज 3 पर ही नहीं है। अब तो अखबार के सारे पन्नों में पेज 3 जर्नलिज्म है, अखबार के फ्रंट पेज 3 जर्नलिज्म है। Is that clear now? So anyway, we will conclude, क्योंकि अभी जो कमर्शलाइजेशन हुआ है, जो इंफोटेनमेंट का जो दौर आया है, आज के दौर में चीजें बहुत बदल गई हैं। आज जो हमारी ट्रेडिशनल फॉर्मेट है उसमें काफी मतलब जिसको कहते हैं कि मिक्सअप हो चुका है। अब इतनी फॉर्मेट्स हैं कि उनको आप किसी खास से डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि जो हिट एंड क्लिक्स का जर्नलिज्म है, जो जूसी और कैची हेडलाइंस का जर्नलिज्म है, जो वो जर्नलिज्म है जिसमें हम लोग डिटेल्स में नहीं जाते हैं, किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाते हैं। एक तो शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट आपके पास है जिसको हम हेडलाइंस जर्नलिज्म कहते हैं। एक इन डेप्थ जो है वो लॉन्ग कंटेंट फॉर्मेट आपके पास है जिसको हम इन डेप्थ जर्नलिज्म कहते हैं, जिसमें कि बड़े बड़े लंबे आर्टिकल्स होते हैं। तो ये दो फॉर्मेट आजकल कॉमन है। अब कमर्शलाइजेशन के बाद जो हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है जर्नलिस्टिक राइटिंग्स के, वो काफी बदल गए और लोगों ने नई चीजें जो है वो अब इजाद हो रही हैं जिनको कि ट्रेडिशनल फॉर्मेट में लोग डिफाइन भी नहीं कर सकते। तो एनीवे इट्स गोइंग टू 7:15, संजय जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो एनी क्वेश्चंस नाउ? यस सर, दिस इज सुमित सर। सुमित, यस यस सुमित, गो अहेड। सर व्यूज, ओपिनियन और कमेंट्स, इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये व्यूज है, ये कमेंट्स है और ये ओपिनियन है? लिटिल बिट आई नो, बट थोड़ा सा और क्लैरिटी अगर मिल जाए तो। कमेंट मीन्स अगर कोई घटना होती है तो आप उस पर कमेंट करते हैं, मतलब हमारा गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई, यस सर, और आपने उस पॉलिसी की तारीफ की,
लेकिन हो सकता है कि आपकी आइडियोलॉजी एंटी बीजेपी या लेफ्टिस्ट हो। यस लेकिन एक खास चीज पे आपने गवर्नमेंट की तारीफ कर दी, लेकिन उस पर आपकी आइडियोलॉजी गवर्नमेंट से मेल नहीं खाती, तो कमेंट है, जो पासिंग हुए घटने में आपने इमीडिएटली कमेंट कर दिया। यस ट्विटर ड्राइवन ट्वीट्स का है, कमेंट्स है, जिनमें कोई डिटेल्स पे कोई पॉलिटिशियन नहीं जाता है, ना पॉलिसी को एनालाइज करता है, ना प्रोग्राम्स को एनालाइज करता है। उसका क्रिटिसिज्म में वो सुपरफिशियल होता है कि एक ट्वीट कर दिया। तो कमेंट एक चीज है कि कोई चीज तत्काल होता है, आप कोई कमेंट कर देते हैं, है ना। ओपिनियन भी थोड़ा सा, ओपिनियन आइडियाज में फर्क है कि अगर आप थिंकिंग पर्सन है तो आपके पास आप हमेशा किसी चीज के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप एक क्यूरियस हैं, आप इनक्विजिटिव हैं। आप अखबार को अगर पढ़ते हैं तो टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार यही सबसे कहता हूँ कि आप जब अखबार पढ़ते हैं, कोई टर्म आपके पास आते हैं, सबको टर्म के बारे में सोचना चाहिए। पेज 3 जर्नलिज्म, आपको अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उसको पेज 3 जर्नलिज्म क्यों कहते हैं, ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो आइडियाज का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं अपने अनुभव से। मैंने कहा कि एक दुनिया ऐसी होती है जो हमारे अनुभव के दायरे में होती है। हम किताबें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो हमारे आइडियाज हम जनरेट करते हैं, और वो आइडियाज सब उनको कलेक्टिव फॉर्म में हमारा आते हैं, तो एक हमारी आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम सबका अपनी एक आइडियोलॉजी है, हर इशू पे एक आइडियोलॉजी है। तो आइडियाज का मतलब है कि जब आपकी ओपिनियन, कई इशू पे ओपिनियन फॉर्म होकर के आपके एक पूरा एक आइडियोलॉजिकल बेस आपका जब बन जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी आइडियाज है। आइडियाज का रिलेशन जो है आइडियोलॉजी से। ओपिनियन आपकी डिफरेंट इश्यूज पे वेरी कर सकती है। कमेंट्स का मतलब जो एक पासिंग फिनोमिनन। Am I clear? Yes, sir. So any other question? Thank you, sir. So should we conclude now? सर मेरा है सर। हाँ राजीव हाँ सर, अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना बिहार में सर, वो क्या है ना कि पोर्टल्स का है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो है ही, लेकिन पोर्टल्स खुल गए हैं बहुत सारे। उसमें क्या होता है ना कि व्यूज पे बस सब कुछ तय होता है, डिसाइड होता है। लेकिन व्यूज में क्या है ना कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि आप कितना भी गंभीर चीजें दिखा ले, जर्नलिस्टिक अप्रोच वाला चीज दिखा ले, प्रो पीपल चीजें दिखा ले, उसे लोग नहीं देखेंगे। लेकिन वही उसमें फूहड़ चीजें हो, कुछ भी हो, अनसंत आए कब आए, तो उसको लोग मिलियन में देखते हैं। तो इस तरह का चैलेंज, मतलब इसमें मेन स्ट्रीम का मतलब या फिर जर्नलिज्म कितना सस्टेन कर पाएगा इन चीजों नहीं, देखो, एक तो ये होता है कि जो अच्छा कंटेंट होता है उसका मार्केट बहुत बड़ा नहीं होता है। मतलब अखबारों में भी ये माना जाता था, पहले भी जो स्टडीज हुई हैं, कि अखबारों में एडिटोरियल पेज पढ़ने वाले लोग सिर्फ 3% होते थे। तो जो रिच कंटेंट है, जो आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, उसका मार्केट छोटा होता है। तो आपको हमेशा मीडिया में जब आप काम करते हैं तो आपको सोचना चाहिए हमारा एक निश्चित जो है वो ऑडियंस है, या हमारा मास ऑडियंस है। क्लास ऑडियंस और मास ऑडियंस का फर्क हमेशा समझना चाहिए। ये पॉइंट में शायद रेज किया था। दूसरा पॉइंट सर एक चीज, हाँ, दूसरा क्या है ना सर, इस तरह की मतलब फिर मीडिया में जो गंभीर लोग होते हैं, जो मीडिया के जॉब में होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। क्योंकि वही चीजें कोई मतलब कम क्वालिफिकेशन वाला, मतलब उसकी कोई कहीं योग्यता नहीं है, वो उस तरह की फुहर चीजें कर सकता है। लेकिन गंभीर जो लोग होते हैं वो ना तो उस तरह का एथिकली उसको अलाउ, खुद को अलाउ कर पाता है कि मैं कर पाऊं इस तरह की चीजें। तो ये सर संकट है लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। नहीं, वो तो ऐसा एक्चुअल ट्रेंड मीडिया में आया ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ट्रेंड हम सभी जानते हैं क्या ट्रेंड आया हुआ है। इसी वजह से न्यूज चैनल की क्रेडिबिलिटी आज बहुत कम हो गई है। लोग उन पर यकीन नहीं करती है, उनकी विश्वसनीयता बिल्कुल कम हो गई है। लोग न्यूज चैनल्स देखने या एंटरटेनमेंट चैनल्स देखना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी बात जो तुमने कही थी कि कई बार क्या हो रहा है कि यूट्यूब चैनल में जो जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं टिक पाए, जैसे उदाहरण के लिए पुण्य प्रसून वाजपेयी है, ये अजीत अंजुम है, अभिषेक शर्मा है, ये तीनों लोग अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, क्योंकि इनकी 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 आइडियोलॉजिकल पोर्शन टोटली डिफरेंट थी जो कि आज की रूलिंग पार्टी की है। तो ये उस पर सर्वाइव नहीं कर पाए। तो कई बार अब यूट्यूब चैनल्स पे कई ऐसे चैनल्स भी आ रहे हैं कि जो एक डिसेंट को या एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन से बिल्कुल आते हैं, और उनको भी लोग देखते हैं। अजीत अंजुम, अभिषेक शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी के चैनल्स के 10-10, 12-12 लाख व्यूज होते हैं।
और वो लोग काफी अर्न कर रहे हैं, मतलब जो नौकरी में अर्न नहीं करते थे जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी आज तक में जब करते थे, तो उससे ज्यादा अर्न आज करते थे। आज अर्निंग उनकी हो रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में जब डिसेंट और डिसएग्रीमेंट्स की जगह नहीं बची हुई है, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया प्रो गवर्नमेंट हो गया है, अब लोग डिसेंट या अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए इन यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं। और यूट्यूब चैनल्स पे जो है वो इनके जितने चैनल्स हैं तीनों के, ये तीनों चैनल्स बिल्कुल घनघोर एंटी गवर्नमेंट है, उनका भी अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है। मतलब अजीत अंजुम ऐसे ग्राउंड रिपोर्टिंग भी काफी करते हैं, बंगाल में फार्मर्स इशू पे काफी बहुत मेहनत करी जो है अजीत अंजुम ने। लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी का जो फॉर्मेट अगर आप लोगों ने देखी हुई है तो आर्टिकल के फॉर्मेट पे होती है, वो किसी इशू पे जो है काफी रिसर्च करते हैं, काफी पढ़ते हैं, पूरा एक प्रेजेंटेशन उसका देते हैं, और लेकिन उसमें भी ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होती है। तो ये हो रहा है आज की आपके तमाम तरह के प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो कि गंभीर जो है वो पत्रकारिता करते हैं। तो आपके पास चॉइसेस हैं, आपका प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अगर पत्रकार बनना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कहीं भी जा सकते हैं। अब आपका टेम्परामेंट क्या, मतलब आपको लगता है कि रिपब्लिक टीवी का रिपोर्टर आप बनना चाहते हैं तो आप जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे इन डेप्थ जर्नलिज्म करना है तो हम न्यूज पोर्टल्स हैं, प्रिंट है, क्विंट है, स्क्रॉड है, जो कि जिसपे भी स्ट्रॉन्गली डिसेंट वॉइसेस भी आती हैं, इन डेप्थ जर्नलिज्म है, ग्लोबल लेवल पे फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है, अटलांटिक मैगजीन है, गार्जियन मैगजीन है, जो कि जो है वो अपने उससे चलती है ना। इसी तरह टेलीविजन चैनल्स में आपको जो है जरूर देखना चाहिए, आपको बीबीसी, सीएनएन इंटरनेशनल, अल जजीरा, एक रशियन टीवी आरटी उसको कहते हैं, आरटी कहते हैं, ये 4-5 चैनल्स आपको जरूर देखने चाहिए। आपको ये पता रहेगा कि जर्नलिज्म किस किस ब्रांड का जर्नलिज्म होता है। फॉक्स न्यूज चैनल देखिए आप, अमेरिका जो यहाँ का रिपब्लिक टीवी है वो अमेरिका का फॉक्स टीवी। तो ये चीजें आपकी मीडिया हैबिट्स जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। एक तो आप न्यूज़पेपर्स के बजाय न्यूज पोर्टल जरूर पढ़िए, आप जो है वो आप अपनी ओपिनियन फॉर्म करिए, उसमें कोई ये भी नहीं कर रहा कि जैसे कि जो गवर्नमेंट के बारे क्रिटिकल जो न्यूज पोर्टल्स हैं, जैसे द वायर है, क्विंट है, स्क्रॉल है, इन आर्टिकल्स आपको जरूर पढ़ने चाहिए। अगर आपको इंटरनेशनल अफेयर्स में आपकी दिलचस्पी है तो फॉरेन अफेयर्स और द अटलांटिक और द गार्जियन को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और इसी तरह से जो है वो टेलीविजन जर्नलिज्म में अगर आपकी दिलचस्पी है तो आपको इंडियन चैनल्स को सीखने के से कुछ नहीं मिलेगा। आप जरा इन चैनल्स को देखिए कि अल जजीरा कैसे रिपोर्टिंग करता है, सीएनएन की रिपोर्टिंग कैसे होती है, और आरटी जो रशियन टीवी है, बीबीसी है, ये सब कैसे ये फंक्शन कर रहे हैं। और सीएनएन को आप देखिए कि अफगानिस्तान में उसे ग्राउंड रिपोर्टिंग कितनी स्ट्रॉन्ग थी। सीएनएन की जो एक महिला कॉरेस्पोंडेंट थी वो कांदार से उसने कितने 27 दिन रिपोर्टिंग करी, और उसने रिपोर्टिंग तब करी जबकि कांदार तालिबान का कब्जा हो चुका था। तो एक महिला का होना, तालिबान का कब्जा होना, वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, कुछ नहीं होगा, तो दैट वाज वंडरफुल रिपोर्टिंग जो रिपोर्टिंग की। और दूसरा ये होता है कि रिपोर्टिंग जो आप करते हैं ऐसे जोन से जहाँ आप डेड बॉडीज देखते हैं, खून खराबा देते हैं, गोलीबारी देखते हैं, अगर तो आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो उस कॉरेस्पॉन्डेंट का एक इंटरव्यू मैंने कहीं देखा था, बहुत इमोशनली उसने इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसने जब रिपोर्टिंग करी तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रिपोर्टिंग करी। तो वो इजी टास्क नहीं आप वहां से रिपोर्टिंग करना ऐसे जोन से। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देखिए, और ये आपकी मीडिया हैबिट्स जरूर चेंज करिए। मतलब इससे नहीं है कि आप वायर की आइडियोलॉजी से सहमत है कि नहीं है, लेकिन आपको वो जरूर पढ़ना चाहिए जिससे आप सहमत नहीं है। अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, आपको जर्नलिज्म में जाना है, किसी प्रोफेशन में जाना है, तो हमारी एक टेंडेंसी क्या होती है कि अगर हमारी एक आइडियोलॉजी है तो हम उसी तरह का लिटरेचर ज्यादा पढ़ते हैं जो हमारे आइडियोलॉजी से मैच करता है। आपको वो लिटरेचर जरूर पढ़ना चाहिए जो आपके आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है, ताकि आप किसी भी इश्यू को उसके टोटलिटी में समझने में आप आसानी। तो अपनी मीडिया हैबिट्स को आप लोगों को इस हिसाब से थोड़ा सा चेंज करिए। सो आई थिंक शुड वी कंक्लूड नाउ? संजय जी आ चुके हैं। ओके सर, थैंक यू सर। तो वी विल एंड दिस सेशन। थैंक यू सर। वी विल एंड दिस सेशन, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग पे वो होगा। आफ्टर 5 minutes you can join again. We will have a break of 2-3 minutes. Okay? ठीक है ना? थैंक यू सर। यस सर। ओके सर।